on this show is meant for informational and entertainment purposes only. Top of the morning, Bay, with Good Morning Bay. Get to know about the traffic on your way and what's news around the world today. Some wisdom skills along the way. Oh, and a song to hum along with and sway. Get your perfect entertaining start to the day. At 9 a.m. every weekday morning with Mahima's Good Morning Bay. The Hotties, the best and hottest Indian radio network in the entire world. Mahima Creations Proudly present Premier Evening Drive Time Show. Bam Bam! Yes, you heard it right. Bam Bam! Every Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Let's beat the traffic. Bam Bam! Bye bye. Namaskar. Namaste. Namaskara. Welcome. Khushamadi. Assalamualaikum. Sat Sri Akal. Meegandriki Vandanamu. Jai Swami Narayan. Jai Shri Krishna. Jai Jinendra. हमारे स्वामी भाई बंधु को बोल दे याली मदद मोला मतलब बोलते सारे फीजे मतलब बोलेंगे निशा बोला बंजन हम आ गए हैं आपके प्यारे महिमा के द्वारा मैं सवाल तुम्हारा and of course myself Altu Rani लेकर आपके लिए एक और drive time show that makes it totally exciting and totally मस्तानी बंधु जानी. True the Banjan, of course. Agar aap sochte, oh my God, this is interesting. What's going to happen today? Well, Banjan, as you know, today, this week is going to be a total week. We're going to be remembering Lata ji, and of course, as you guys know, we got this sad news that she actually passed on, went on to the next realm, Banjan, where, you know, she's going to be joining some other greats. And probably they're having a party somewhere there. And I feel bad we don't invited there. So, but anyways, but we thought we'll have a party of our own. As we will remember Lataji and all the wonderful songs she's given us for all these years. And that's why we're going to be today, right, Faltani? That's absolutely right, Banjan. कल तो हमने जो बात किया था, we had talked about Lata ji and certain little beautiful things about her, not a Shraddhanjali, but a Shraddhanjali Radio Devotees style. जो Media Mahima का unique style है present करने का about some really intimate moments of her life that were shared by her herself. Yeah. And about certain things that are really awesome about her, and some songs that you possibly haven't heard in a long time, or songs that you may never have heard of. Yeah. And those are the kind of songs that we talked about. And Bato Mein, I think we also talked about the fact that how there's so many things we can learn from her. Yeah. And apart from the fact of work ethics, right? One of the things what we really noticed about her was the fact that with 75 years of experience working in the industry, she was very humble. Right. And supposedly she was one of the people who actually worked with so many other stars and players. If you look at Manoj, just कल के program में ही हमने काफी सारे we actually counted at least around 10 music directors. We played around probably around 10 songs yesterday, and हर एक song we made sure they were actually from different music directors. So variety of music directors के साथ में उन्होंने काम किया है ही. Okay, we stand corrected. We played excerpts of 10 songs. Because we could play it in full, Wait, right? Now, whose side are you on, Faltwani? My side or Deepa's side? What is this? Tell me first. I'm just saying that we did that because we had to. We couldn't span all those decades. See, we have been growing. Many of us are grown up listening to the songs, and especially radio में तो हमारा हर एक दिन कुछ ना कुछ रहता है. We talk about one of the beautiful songs she has sung for us, right? Yeah. So you already have heard most of the songs, but we didn't know. We actually tried to play as much as possible some songs which you probably wouldn't have heard often on our radio. Right. So that's something which we could definitely check our data and share with you for sure, which we did actually. And turns out that we had a bunch of good songs coming up for that. And आज of course ऐसे ही कुछ special आपको मिलेंगी because today's show Lata Mangeshkar ji को हम लोग we're gonna remember her as her as a cricket fan aficionado as of yesterday we established that, right? Apart from that, she also was a wonderful singer, as you know. We also came up with the concept of actually one of our bandhus actually shared the fact that she was so multi-talented, and so much steeped in music. She not only sung music, she also used to compose music. She is known to have composed a lot of good songs, but a lot of good movies. उन खुद का film निकाला था उन्होंने, चाची सिलसिला. We played a song for that also yesterday. Silly song from the movie
Lekin movie. That was her brother's composition. Yes, and she did, काफी सारी चीजों में उन्होंने, come on, yeah, 75 years of experience in the industry, she would have done many things, right? One thing what we actually stood out to us was the fact that what kind of a team player she was, right? Right. In fact, लता जी के बारे में, right, बोला जाता है कि वो बहुत, she used to be very egoistic. She wouldn't want, I don't know. wouldn't let somebody sing with her. They wouldn't Seriously? let some. I don't Yeah. think so. There's been conversation. हाँ, There's a lot of. उतना नहीं है ना जितना कि आज के ज़माने में my dear, आज के ज़माने में the people, the kind of feuds they have just to get TRP in television shows. My God, sorry, I have to call this out of people. Who are the people, man? Who else? The people, the likes of all the new Neha Kakkas and all, start crying on this thing, and, Oh, really? What Oh, yeah. happened? I don't know what happened. Not right now, but of course. Okay, anyway, so हम आज ये बताना चाहते हैं बंजन कि हमारी जो लता दीदी बोलो या लता जी बोलो या लता मंगेशकर जी बोलो, जो भी बोलो, आज हम लोग ये आपके सामने पेश करना चाहते हैं कि एक अच्छे आर्टिस्ट का जो साइन है, पहचान है, इज नॉट ओनली इन द वे दे एग्जीक्यूट देयर ओन आर्ट, कि वो गाना कैसे गाते हैं, बट इट्स ऑल्सो हाउ ब्यूटिफुली दे मेल्ड देयर वर्क विद देयर पियर्स. यानी कि प्रोफेशनल राइवलरी लोग जब उनसे पूछते थे, she never really answered the question about professional rivalry. Yeah, because she actually would say everybody is like. But one thing she did say, Alto Baba, in a recent, in one of her 2008 में एक interview किया था, उस interview में उन्होंने बोला कि जो 40s से 70s तक golden era इस वजह से था because वो जो अपनापन था, no matter what, we worked on things together. Yeah. तो and then जो क्या कहते हैं, जो आजकल है वो नहीं है. She said that वो आज नहीं है, and she said without a doubt नहीं है. And the same thing she repeated in another interview that she did in 2018 also. So she said that वो जो अपनापन है वो नहीं है क्योंकि there is no camaraderie anymore. जैसे मैं किशोर के साथ ये करती थी, या it was like हम एक दूसरे से मिलते थे and बात करते थे. We used to hash it out with the directors and stuff. So today what we are trying to talk about is about being a team player. क्योंकि हमेशा ऐसे होता है कि generally आजकल के ज़माने में ना आलतू, it's become more of an individualistic approach. तेरे को नहीं लगता है? I agree with you. हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखो, generally if there is a team, seldom will you find people who all actually act as team players. Everybody is trying to one up the other person. And I've noticed that even among singers, यहाँ पे local Bay Area में so-called singers or singing groups or troops होते हैं जहाँ पे they try to one up each other while they're performing also. Like, even if you're doing the idea is for you to be able to sing together, to make the beauty of the song come out, not show off that you're a better singer than somebody else. Wow, that's true. Right? And that is what Lata ji stood for. If you actually listen to some of the songs that we're going to air today, Banjan, we're going to actually talk about, you'll hear, you don't see one person one-upping the other, even if the song is a situation like a kavali. Very true. In fact, you brought out same thing on one of our bandhus actually on Facebook. Oh yeah, by the way, we are on Facebook, and if you're listening to us right now on our app, you probably can switch to our Facebook where you can actually see a video version of our particular program as a Brajan. And yes, Deepa ji is saying that she did not discriminate with her fellow singers. That's true. She actually worked with most of them. And dekho yaar, you bache, oh, the feud between Rafi and her, the feud between Opine and her, you might say all those things, Brajan. But tell you what, 75-year career mein do feud is nothing. We don't know, right? No, I'm just saying that, if you look at that way, right? So if the amount of people she's worked with, I don't think anybody else can actually boast about it. Yeah, you can have a Kumar Sanu come and say he recorded, like in one day, he recorded 300 songs, a different issue. That's why the quality of the 90s is so bad. But the point is, what? Hey, so the fact is that, right? We're trying to go to the kind of commercialization of the art, right?
That's what happens. She actually will lose out on the fact that, hey, why are you laughing like that, guys? Oh, big deal. I didn't expect that to come. So that's why. What do you mean? Yeah. Hey, the thing is, that's what it is, right? So what we're talking about today is the fact that how Lata ji will show you. In fact, unke duets bole to we generally talk about male and female, right? Huh. But if you look at that, she has got so many wonderful duets with her own counterparts, like with female singers itself. Yes. वो भी है, तो वो भी दिखाएंगे आपको. And yes, there's some beautiful songs. If you want to share some of the duet songs which you love of Lata ji, please give us a call here. There might be some singers she might not have sung with, but I think most of the singers she has covered. At least 90% of singers across, even now for the matter, the likes of Sonu and all, she's actually sung songs with them, right? Including our A.R. Rahman sir, right? So that's one thing. If you want to share any of your favorite songs of Lata Mangeshkar as a duet, please do give us a call here. Number is 4089122479 408-912-2479. तो अगर टीम प्लेयर कहा जाए तो ऑफ कोर्स टीम प्लेयर के हिसाब से her as duet singer it comes up automatically, right? So Faltani, anything which comes to your mind? Well, I think one of the biggest when Lata Mangeshkar ji entered the industry, right? There were her voice. उन्होंने खुद बोला कि उनकी आवाज पतली मानी जाती थी. Because at that time there were these strong, heavy-voiced singers. With the timbre of the voice जो बोलते हैं. That was one of a more heavy nature, and that is with singers like Noor Jahan. And she herself says that she listened to Noor Jahan and she was told, learn how to sing like this. Oh wow, really? And she says, yes, I listened to it and I used to try to sing like her. And also there was another singer, and maybe Bandhus can call us and tell us who this singer is, who was another amazing singer who had this heavy voice. A very unique voice. You can never forget that voice, but an amazing singer. Very, very good singer. With her, Lata ji holds her own in this particular song, and it is a full-on, out-and-out Urdu कव्वाली. Oh, very good. And we'll start with that particular song. अगर आप जानते हैं ये किसके साथ लता जी ने टक्कर ली है, but at the same time beautifully team प्ले किया है. आप यहाँ पे कॉल कर सकते हैं. स्टूडियो का नंबर है 408-912-2479. So basically they already would know, obviously know Lata Mangeshkar's voice, which they could whose other voices. Yeah. Interesting, Father. It's a good start actually. Let's do that. Let's do that. Here you go. See how heavy the voice is and strong. So now you'll listen to Lata Mangeshkar's voice. Yeah. अरे इसमें एक कॉन्ट्रास्ट आ गया यार. both the voices are great voices, but here you go. गाना थोड़ा सुनिएगा, बताइएगा ये कौन है सिंगर इनके साथ में. You would have recognized the two audio clues we gave you. One of them is definitely got to be Lata ji, right? Who is the other one? We are asking you guys. सोच के कॉल कीजिएगा on this special show we have for you guys, Lata ji, Team Player Tuesdays. वाह वाह वाह. घड़ी भर को तेरे नजदीक आकर हम भी देखेंगे. घड़ी भर को तेरे नजदीक आकर हम भी देखेंगे. अजी हाँ हम भी देखेंगे. तेरी महफिल में किस्मत आजमा कर हम भी देखेंगे. तेरे कदमों पे सर अपना झुका कर हम भी देखेंगे. तेरे कदमों पे सर अपना हा नौशाद साहब का म्यूजिक यार. माय गुडनेस फाल्तनी शकील बदायूनी की बोल है फालतू. वाह वाह वाह. एंड ये हो सके तो पूरा गाना बजाने में मजा आता है. हमने कभी बजाया है लेकिन फिर भी लेट्स गो टू कॉल वेटिंग लाइन जो हमारे लिए फोन बजा रहे हैं. नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है पैम के टीम प्लेयर लता मंगेशकर के स्पेशल में. हुज दिस? हेलो हेलो, कौन है भाई? थोड़ा अपना फोन अनम्यूट कीजिएगा प्लीज. लगता है इनको हमारी आवाज नहीं आ रही है या उनकी आवाज हमारे तक नहीं पहुंच रही है. Who's this? हेलो, एक और मौका आपको वरना मैं गाने की तरफ जाऊंगा. Who's this? हाय पैम, कौन है जी? छोड़ दो, ठीक है, फिर से कॉल कर लेना.
नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है पैम पैम के टीम प्लेयर ट्यूसडे में। हुज दिस? हेलो मोहम्मद मर्चेंट। मर्चेंट साहब, बैकग्राउंड में थोड़ा वॉल्यूम कम कर दीजिएगा। अभी अभी हाँ, अभी वेरी गुड क्या? सर, आपने पहचान लिया कौन है सिंगर? भाई शमशाद बेगम। ओए होए 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 होए, वेरी गुड वेरी गुड। आप तो शमशाद सिंह के बड़े फैन हो, मालूम है मुझे। सही है नहीं, ना? वो सिलसिला ये था हाँ कि 45-50 में आमिर भाई कर्नाटकी थी, हाँ हाँ बड़ी जबरदस्त सिंगर थी भाई। हाँ हाँ। अच्छा, उसके बाद शमशाद बेगम थी, और समझे ना? हाँ। तो शमशाद ने भी बड़ा जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया अपनी लाइफ में भाई। ऑफ कोर्स, यस सर, यस। और ये नसीम बानू की नानी थी। अरे वाह। ये नसीम बानू की माँ थी और सायरा की दादी नानी नानी थी, यस यस। नानी थी सायरा बानू की। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। मगर शमशाद का भी जवाब नहीं था, लता जी के साथ साथ चतु गई वो भी हाँ काफी एक्चुअली अरसे तक। करेक्ट करेक्ट। शमशाद बेगम जी हाँ, वो सीनियर टू हर ना, तो उनसे थोड़ा पहले आ गई थी हाँ इंडस्ट्री में। काफी yes. काफी। भाई वो एक गाना सुनना है किशोर का और लता जी का, हाँ जी। घूम के दिल तेरे प्यार में सुबह शाम। गुम है बड़ा किसी की प्यारा प्यार गाना। में। गुम है किसी की प्यार प्यार में, में दिल ये दिल सुबह शाम। ब्यूटीफुल सॉन्ग सर। सर हो सके तो डेफिनेटली प्ले बड़ा करूंगा, प्यारा बिकॉज गाना। हम लोग किशोर कुमार के साहब की बात भी करने वाले हैं। एंड थैंक यू सो मच शेयरिंग द सॉन्ग विद अस। यस, वी विल डेफिनेटली ट्राई टू प्ले फॉर यू सर। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सुनते रहेगा ऑल द सर। बेस्ट। थैंक Thank यू you, सर। एंड यस, ही इज राइट। उनके पास तो काफी सारे ऐसे फिल्म में गाने हैं जो उन्होंने ड्यूएट्स गाए हैं डिफरेंट डिफरेंट सिंगरों के साथ। And yes, Kishore Saab is one of those wonderful people many people love, and he's sung some good songs with her. ये कब कैसे, मतलब 60s 70s में ढेर सारे से गाने आए जहाँ पे duets थे, and Kishore Kumar Saab actually continued further into 70s and 80s as well, right? So you understand the kind of songs he used to give us. Wonderful songs used to come out of R.D. Burman's kosh, correct? Pretty much. या एब्सोल्युटली। तो गाना और बजाओगे आलतू बाबा? I don't know, Father. You seem to be utsuk on that, so let's go ahead. उम्मीदों की कलियां मुस्कुराई हैं, बड़ी मुद्दत में भी बड़ी मुद्दत में उम्मीदों की कलियां मुस्कुराई हैं। गम दिल से जरा दामन बचा कर हम भी देखेंगे, गम दिल से जरा दामन बचा कर हम भी देखेंगे, अजी हाँ हम भी देखेंगे। Well, Banjan, ये गाना थोड़ा लंबा गाना है. It goes all the way until 5 minutes. And if at all you want to give us a call here, 408-912-479. लता मंगेशकर की आवाज अभी आएगी बंजन. थोड़ा सुन लेते हैं, तब तक आप अपने कॉल कीजिएगा यहाँ पे 408-912-479. You can share some of your favorite duets. In fact, मर्चेंट साहब ने ऑलरेडी रिक्वेस्ट कर दिया है, उनका फरमाइश जो है हम लोग डेफिनेटली उसके ऊपर अमल करेंगे. लेकिन आप भी यहाँ पे कॉल कीजिएगा क्योंकि आपका रिक्वेस्ट हमारे सराखों पर. Here you go. अगर दिल गम से खाली हो तो जीने का मजा क्या है? हाय 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 हाय. न हो खूने जिगर तो अश्क पीने का मजा क्या है? Oh my God, Padari, ये lyrics देख के ना, I think we should change the whole theme for today's show. Why? क्या मस्त lyrics है भाई. I tell My you, goodness. seriously. Who wrote the lyrics for this? Shakil Shakil Badayani, yeah. He's a great poet, wonderful poet. And of course, Bhajan, the way the singers also have rendered the particular shairi, that also comes into play. And of course, if you look at it, right, she's a team player. Na? You actually shared with me about the interview. I never saw the interview, but you said you saw the interview about how what was her take on music directors? Yeah, actually, more than music directors, ये था कि ये जो उनको इंटरव्यू कर रहे थे, उन्होंने पूछा कि राइवलरी तो होती है, राइट? ऑब्वियसली कि उनके कितने गाने हैं, सभी compete कर रहे हैं, मुझे वो गाना मिले, ये मुझे वो गाना मिले टाइप, राइट? तो उन्होंने पूछा कि उस ज़माने में ऐसा था कि सेशन आर्टिस्ट थे, मतलब पूरे ऑर्केस्ट्रा जो पूरा पल्टन है, म्यूज़िकल पल्टन है, उनके साथ अगर ड्यूएट है तो मेल सिंगर, फीमेल सिंगर, अनदर फीमेल सिंगर. टुडे we're talking mostly about female singers. इन लोगों को लेके सभी को इकट्ठे प्रैक्टिस करना पड़ता था.
सभी को परफॉर्म भी टेक भी देना पड़ता था. अगर टेक बोले तो फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट अंडरस्टैंड व्हाट वी मीन बाय टेक, इट इज लाइक ओके इट इज बीइंग रिकॉर्डेड एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम, राइट. जब वो होता था अगर एक बंदे ने गलती कर दी, राइट, तो सभी को वापस करना पड़ता था सब Oh कुछ. my God, that's team. That also built team effort. You know, that talks about how much of a हाँ. team player she was. तो they asked कि उस जमाने में इस जमाने में क्या अंतर है. वो क्या है थोड़ी देर के बाद बताएंगे. बंधु से बात करते हैं पहले. हेलो नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है पैम पैम में. कौन है जी? पैम 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 कौन बात कर रहे हैं? हेलो Jaina. Jaina. Hi Jaina. Pam Pam, how are you doing? Hi sweetheart. So Jaina, is your mom with you? Pam, हाँ. mom is here. Pam हाँ. Pam, Altu Baba, Pam Pam, Faltu Rani. कैसे हैं विभाजी? विभाजी कल आपने फोन नहीं किया? हाँ. सही आपने खुंदस उतार दिया? अच्छा लगा आपको? अरे यार कल का आपको पता ही है ना मेरे साथ नहीं क्या चलेगा हुआ चलेगा, था। नो प्रॉब्लम, बट वी अंडरस्टैंड. हम तो कुछ और ही पढ़ लेते हैं ना बीच में ना यार. डजंट मैटर होता है, जायज यार. फीलिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट आल्सो. तो बताइए आज हम लोग टीम प्लेयर परफॉर्मेंस की बात करें तो आपके हिसाब से वन ऑफ द फेवरेट, योर फेवरेट ड्यूएट सॉन्ग्स ऑफ लता जी, एंड हु वाज सिंगर शी sang with? इनके गाने तो बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे गाने हैं, बट एक गाना जो मुझे बहुत अच्छा लगता है इज वो जो उन्होंने एक गाना गाया था पिक्चराइज्ड ऑन, क्या नाम है इनका, संजय दत्त मदर एंड राज कपूर, द सॉन्ग जहाँ मैं जाती, नरगिस एंड राज कपूर, जहाँ मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो. पर मुझे अब याद नहीं आ रहा कि वो मेल सिंगर कौन था उस गाने में. नॉट एबल टू रिमेम्बर, बट या शी हैड सम वेरी वेरी ब्यूटीफुल duets. Very good, thank you. I think we'll see if we can land that song. I think there was opposite who was singer with him, with her, जहाँ मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो. हाँ, मुझे याद नहीं आ रहा वो मेल कौन था, मेल काउंटर पार्ट कौन था, बट yeah, that was one of her very very old song, but also very very nice song. हाँ, तो it was a male female duet, right? So okay, ठीक है. Okay, sounds good. So thank you so much Vibhaji for calling in and have a beautiful fantastic evening. नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है पैम पैम में. कौन है जी? हेलो, मैं आई हूँ इधर फोन पे, उधर नहीं आ पाई, सॉरी. तो क्या करें हम बताओ? तो जिस दिन आप नहीं आए ना, ऐसे ही इनोसेंटली फोन कर दिया हमारे विभा ने. मैं तो बस यार तुम लोग समझते नहीं, मैं तो सही बोलता हूँ, पकड़ता हूँ. हाँ, मैंने सुना. उसको पता चला कि वो आप नहीं आ रहे हो, तो टक से उसने फोन कर दिया, वरना तो फोन विभा कहाँ करेगी. अरे नहीं, तो देखो देखो हाँ बोलो. आज अभी तुम बोल रहे थे इन द बिगिनिंग ऑफ द शो, कैसे मतलब मैंने कमेंट दिया कि लता जी ने डिस्क्रिमिनेट नहीं किया ना किसी सिंगर को, उसको वो सबको चांस दिया उन्होंने, और इतने प्यार से रहती थी. तो तुम भी डिस्क्रिमिनेट मत करो डिकेट्स के ऊपर, ओके? आप क्या बोल रहे हो, थोड़ा आप वैसे आलतू बाबा नहीं, मैं यहाँ पे आलतू बाबा से सहमत हूँ, एंड ऑब्वियसली बिकॉज लता जी का मतलब श्रद्धांजलि है. दीपा, मैं बताना चाहती हूँ, लता जी ने खुद बोला द गोल्डन एज वाज 40 to 70 एंड उन्होंने 2021 में ये बोला. कल की शो में ये बात ली, कल की शो में बात ली. मैं अच्छा ठीक है, वो गोल्डन एज है, लेकिन उन्होंने ये तो नहीं बोला कि 90s इज राड केज. अरे उन्होंने ये बोला आजकल वो बात नहीं है. It was as good as saying, as good as her saying that I have worked all the greats. सुनो मेरी बात. अच्छा बोलना Can I ये say बात something, नहीं है कि दीपा? किसी और को बुरा बोलना. दीपा, मुझे कुछ बोलने दो ना प्लीज, कुछ बोलो. हाँ, मैं अभी मैं बोल रही हूँ, मैंने कॉल किया बोलने. हाँ, तो मैं तुम तो मुझे बोलने ही नहीं देते आलतू को, बस सच्ची में. वाह, उल्टा चोर कोतवा को डांटे. हाँ, ऐसा कुछ नहीं है. हाँ, तो चाचा बताओ, आप बताओ क्या बोले थे. वही मैं बोल रही हूँ, क्या वो ठीक है कि हम लोग प्रेस करेंगे 60s 70s, तो ऑफ कोर्स अमेजिंग म्यूजिक वाज देयर, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ये दूसरे को ये नहीं करेगी. अपनी अपनी जगह सब ठीक है, राइट?
आप बोला खत्म हो गया, आप बोल रहे हैं? अभी मैंने सॉन्ग नहीं बोला ना बाबा। वैसे जो तुमने ये स्क्रीन पे किया अच्छा किया है। डुएट, 2 माइक रखा है, एक दूसरे को गले लगा रहे हैं माइक। Oh my God! Well, actually, today we're going to feature all the duet songs, some of the beautiful songs I know of also. आपने कुछ अपना गाना लगता है, आपने बताना, why don't you share your favorite duet song of hers? Something with Kumar Sanu. देखो उसे दोनों, मुझे तो सबसे like one of the best duet with her sister, like जो फालतू रानी को भी पसंद है। मन क्यों बहका रे बहका आधी रात को, बेला महका हो, बेला महका रे महका आधी रात को। इस सॉन्ग में यू कैन सी उन दोनों का टेक्सचर ऑफ वॉइस इतना क्लियरली मालूम हो जाता है ना, लाइक द स्टाइल ऑफ सिंगिंग, एंड बोथ ऑफ देम हैव डिफरेंट Well, interesting you brought it up. Today I have a very unique song which actually has both of them singing in the early times. ये मन को बेहका actually came out somewhere in 70s, right? Was it 70s? No, 80s. 80s में उत्सव 80 में आया था। उत्सव 80s, okay. I don't know. I don't remember. I will not know all तो those things. इसलिए तुम वो गाना नहीं बजाओगे, right? नहीं, हम पैदा ही नहीं तो क्या करें हम लोग, बजाएंगे, डोंट वरी, आपके लिए वो गाना बजाएंगे for sure, okay? तो here's what we'll do. दीपा जी, आपके लिए वो गाना लाना for sure, because फरमाइश जो भी आ रही है, मोहम्मद मचन साहब ने एक फरमाइश की है, आप लोगों का फरमाइश में डालूंगा जरूर, तो सुनते रहिएगा, okay? And thank you so much. मेल का एक बोलूंगी मैं। अच्छा, मेल का भी है आपके पास? हाँ बोलो। हाँ बताओ। बोलो। एक वन ऑफ द एक और खासियत मैंने जो नोटिस किया लता जी के बारे में, लाइक उनका सबके साथ मतलब इवन मेल सिंगर्स ना, सबके साथ वो अच्छा बैठ जाता था, लाइक आई डोंट नो, लाइक ऑल द सॉन्ग्स, लाइक पता नहीं उनका एनर्जी ऐसा था कि सारे गाने ब्यूटीफुल हो जाते हैं वैसे। ऐसे मतलब किसी के मेल सिंगर के साथ ओनली सम ऐसा सूट होता है ना, ऐसा नहीं था उनका। उनका हर एक के साथ बैठ जाता था तालमेल। तो ये वो गाना है जो पुराना राज कपूर संगम मूवी का, वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट। ओ मेरे सनम, ओ मेरे सनम, दो जिस्म नहीं एक जान है हम, with Mukesh, one of the best duets. Wonderful. I'll see if I can line it up for sure, Deepa ji. Thank you so much for that particular request. And आपको मालूम है ना, पूरा हफ्ता चलेगा, and somewhere around the time you'll definitely hear a song on our app also. In fact, we dedicated the whole app for only her songs and her music and her duets. And beautiful. Okay, but thank you so much for calling us. Yes, मैं सुन रही थी. Thank you. सुनते रहिएगा. And of course, बनीजान, आज हम लोग ज्यादातर फोकस कर रहे हैं क्योंकि लोग हमेशा बोलते थे कि लता जी की बहुत राइवलरी थी, लता जी की वजह से कोई और एक्ट्रेस की, कोई और सिंगर की आगे बढ़ ही नहीं पाई. Yeah, but anyways, that's compared to the span of existence of 75 years, that's nothing compared to it. Yeah, so today we are actually showcasing the people with whom she actually performed. कुछ interesting किस्से कहानियां भी आपको सुनाएंगे. तो एक ऐसी परफॉर्मर थी जो उनके जब लता जी एंटर हुई, मतलब जब वो एक्चुअली एक्टिंग से सिंगिंग, प्लेबैक सिंगिंग उन्होंने चालू किया अराउंड 16-17 years of age. उससे पहले वो एक्ट करती थी मराठी सिनेमा में, वो ना सिस्टर का रोल, मम्मी का रोल, नॉन मम्मी का, बहन का रोल, भाई बेटी का रोल, दैट काइंड ऑफ रोल शी यूज्ड टू डू, एंड शी यूज्ड टू सिंग साइड कैरेक्टर्स काइंड ऑफ थिंग दैट शी यूज्ड टू डू. बट अभी जो गाना हम लोग आपके लिए पेश करने वाले हैं बंधुजन, ये बताना चाहते हैं कि this was a leading actress of that time. This was a leading singer of that time. उस ज़माने में गाते भी थे, they were singing actors, right? और acting singers, so to speak. And इनके ऊपर फिल्माया गया है, and इनके साथ इनका एक duet है लता जी का, जो very interesting duet है. It was actually a hit of that time. तो उसको हम लोग आपके सामने पेश करने वाले हैं, एंड ये कौन है आपको हमें कॉल करके बताना है ऑन 408-912-2479. अगेन, लता जी की आवाज़ तो आप पहचान लोगे, वो दूसरी आवाज़ किसकी है आपको यहाँ पे कॉल करके बताना है. ये शायद ही सुना होगा आपने, किसी ने, पता नहीं, हम लोग
पता नहीं कहाँ से रिकॉर्डिंग छान छान के हम लोग लेकर आए हैं आज, एंड रिकॉर्डिंग क्वालिटी में भी नॉट दैट ग्रेट बिकॉज देयर माइट बी सम व्हिच हैज़ gramophone से LP से they've actually been translated or whatever, how do you, I don't know how you what the term is, but it's been transcribed from there. So कभी कभार वो generation loss भी होता है. So please pay close attention to this particular song. I'm not going to tell you which movie. You have to tell us कि ये किसकी आवाज़ है और ये किस पे फिल्माया गया था ऑल्सो, इफ़ यू कैन, एंड कौन गा रहा है हमारे लता जी के साथ. बहुत ही उम्दा गाना है, सुनिएगा, एंजॉय कीजिएगा. टेल अस इफ दिस इज समथिंग दैट यू आर एबल टू आइडेंटिफाई. आई होप आई गेट दिस फीड राइट क्योंकि आल्तो बाबा जस्ट स्टेप्ड आउट, सो हियर यू गो. परदेसी मुसाफिर, ओ परदेसी मुसाफिर, किसे करता है इशारे, किसे करता है इशारे. इतना तो बता दे, इतना तो बता दे, तेरा दिल किसको पुकारे, किसको पुकारे. ओ परदेसी मुसाफिर. See what we talked about, the timbre of the voice, Banajan, being a more thicker voice. So वो आवाज़ आपने सुनी, वो किसकी है? लूटा है मुझे तूने ही मेहमान बना के, मुझे मेहमान बना के. लूटा है मुझे तूने ही मेहमान बना के, मुझे मेहमान बना के. ओ पूछने वाले, ओ पूछने वाले, मेरा दिल तुझको पुकारे, तुझको पुकारे. ओ परदेसी मुसाफिर, ओ परदेसी मुसाफिर. ये जो आवाज़ आपने सुनी बंदूजान, आई एम गोना कंटिन्यू द सॉन्ग, लेकिन आपको कॉल करके बताना है ये कौन है, किसकी आवाज़ है. एंड अगर आपने पहचाना, मुझे 100% मालूम है हमारे मोहम्मद मर्चेंट साहब तो फटाक से पहचान लेंगे क्योंकि उनको 100% मालूम होगा, अनलेस उनको कोई कन्फ्यूजन हो गया या कुछ ऐसा हो गया. तो आपको यहाँ पे कॉल करना है 4089122479 और हमें बताना है कि ये किसकी आवाज़ है. Again, 408-912-2479. I think there is a Bandhu already calling us, na, Altu? Hello, Pam Pam, कौन है जी? पैम पैम. Pam Pam, विशाल जी कैसे हैं? बढ़िया. आप हमारी आवाज पहचानते हैं. अरे और हम सुरैया जी की आवाज पहचानते हैं. Oh my God! Are you Show sure? off. हाँ, exactly. आप सुरैया जी की आवाज कैसे पहचान लिए? अरे सुनते थे दादाजी के साथ, मैंने बताया ना, हम लोग बहुत सुनते थे. वो LP से? तो ओह वाह. एक्चुअली उसके लिए भी जो शमशाद बेगम का गाना था, हाँ. दैट इज वन ऑफ माय फेवरेट कवाली. एक्चुअली मुगले आजम के सारे गाने एक्चुअली 2000 अमेजिंग सॉन्ग. हाँ जी बिल्कुल. मुझे तो एक जमाने में वो प्यार किया है डरना, उसके पहले इंसान एक बार किसी से, वो पूरा याद था. ओह वाह. तो अभी भी याद है. या तो ये भी अभी इतना नहीं है, लेकिन जब सुन रहा था ये जो कवाली थी, आई वॉज लाइक सिंगिंग. आई वॉज ड्राइविंग, सो आई डिडंट कॉल. कॉल किया और काट दिया क्योंकि ड्राइविंग में बहुत डिस्टर्बेंस आता है. तब तक वो फिर उन्होंने कॉल कर दिया था मोहम्मद मर्चेंट साहब ने. बट वो जितना भी बजा गाना, आई वॉज लाइक सिंगिंग अलोंग. याद आ रहा था. Not bad at all, not bad at all. आपने ये गाना पहले तो आपने सुना था. I don't think many people would have heard, but I'm so glad that you called and you identified कि इनकी आवाज़. And of course, she was a very beautiful lady also. अच्छे और भी अच्छे गाने थे, दिले नादान,
तुझे हुआ क्या है। लता जी के साथ नहीं है, वन इज विद तलत वो तलत, अलग है, वो हाँ। तलत जी के साथ है, वो सुरैया जी का। लेकिन यस आई वांट टू, बट थैंक यू सो मच आपका जो हाँ वो अलग है, आई नो। सुरैया की आवाज, सुरैया लेकिन सर थोड़ी जैसे अलग कि आवाज, यू जैसे कैन कि आइडेंटिफाई। हाँ, लेकिन आज जैसे कि आपने वैसे किया था, टुडे शो नॉट अबाउट नेहा, टुडे शो नॉट अबाउट सुरैया, टुडे शो इज अबाउट लता जी's team player attitude, how well she used to play as a team. Yeah. Wonderful, thank you. इफ यू आस्क मी कि कौन सा अच्छा है, बट आई वुड से मेरे को तो सारे ही गाने अच्छे लगते थे। Correct, correct. इवन आई मीन मुकेश जी के साथ है, जैसे वो था सरस्वती चंद्र का फूल तुम्हें भेजा है खत में। हाँ हाँ, Okay. करेक्ट। मोहम्मद रफी के साथ तो नहीं थे, कम शुरू में हुए होंगे, बट उसके बाद उनका कुछ था। Perfect. बट ईश्वर कुमार पन्ना डे बहुत सारे हैं। But thank you so much विशाल जी सुनने के लिए। We'll definitely make sure we can play the song which you're requesting, okay? Right, Thank you. absolutely. Thank you so much for joining in. So, Banujan, we're going to play you a couple of. We're going to play you this particular song, this Lata ji and Suraya wala song, and you can enjoy this Gana. We're going to take a small little break, and then we're going to come back and we're going to continue the show. Alto Baba. ये मुझे पूछना था कि सॉरी, ये मुझे पूछना था, ये पहले से बजाऊं क्योंकि तुम्हारा मिस हो गया थोड़ा बहुत, या नहीं लग बजा तू कहाँ पे थे, वहीं से बजा तू। ठीक है, सुनो। परदेसी मुसाफिर, परदेसी मुसाफिर किसे करता है इशारे, किसे करता है इशारे। इतना तो बता दे, इतना तो बता दे, तेरा दिल किसको पुकारे, किसको पुकारे। ओ परदेसी मुसाफिर। लूटा है मुझे तूने ही मेहमान बना के, मुझे मेहमान बना के। लूटा है मुझे तूने ही मेहमान बना के, मुझे मेहमान बना के। ओ पूछने वाले, ओ पूछने वाले, मेरा दिल तुझको पुकारे, तुझको पुकारे। ओ परदेसी मुसाफिर, ओ परदेसी मुसाफिर। आ गए फिजाओं में मोहब्बत के तराने, मोहब्बत के तराने। आ गए फिजाओं में मोहब्बत के तराने, मोहब्बत के तराने। ओ कर न चले जाए, ओ कर न चले जाए, सावन के नजारे, सावन के नजारे। ओ परदेसी मुसाफिर। Oh, what a cute song. It's from the movie बालम बंधुजान, and आपको हम बता दें कि ये गाना था सुरैया जी की आवाज़ में और हमारी ब्यूटीफुल, दोनों की आवाज़ ब्यूटीफुल है. दैट इज़ द बेस्ट पार्ट अबाउट दीज पर्टिकुलर सॉन्ग्स. लेकिन हमारे यहाँ कोई और शामिल हो गए हैं, हमारे एक और बंधु हैं जो हमारे साथ यहाँ पे शामिल हो गए हैं. ये कौन है पूछते हैं. हेलो पैम पैम, कौन बात करें जी? मोहम्मद मर्चेंट। हेलो मोहम्मद मर्चेंट साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का बड़ा एहसान बाड़ी पे कर रहा हूँ, आप लोग की दुआएं. और ये मैं कब से ट्राई कर रहा हूँ, पकड़ के खड़ा हुआ हूँ, ये मैडम सुरैया की आवाज. हाँ मालूम है, लेकिन वो तो हमारे वेरी ओन विशाल अरोड़ा जी ने बता दिया कि वो सुरैया जी की आवाज है. मगर एक बात मैं आपको बताऊं. हाँ जी सर. कि सुरैया और लता के गाने बहुत कम फिल्मों में आए. करेक्ट. शमशाद के साथ लता
उसका पैर जबरदस्त बनता था। हाँ ये बात मैं आपको बताऊंगा। हाँ, वो क्या आप जानते हैं क्यों? नहीं, इसलिए कि शमशाद बेगम बड़े जोरों पर थी उस जमाने में। अच्छा, ओके, यहाँ हाँ शी हाँ वाज अ वेरी वेरी पावरफुल लेडी ऑफ दैट एरा, यू नो। हाँ, करेक्ट। और कई फिल्मों में उसके गाने तो चले ही आते थे शमशाद के। हाँ, करेक्ट करेक्ट। और सोरिया भी गाती थी, नो डाउट। शी हैड अ वेरी वेरी पावरफुल वॉइस, हाँ, मैडम सोरिया। करेक्ट और वो एक गाना उस दिन बजाया था फालतू बाबा ने, ओ दूर जाने वाले करेक्ट वादा ना भूल जाना। तो करेक्ट। मैं ये जब गाना सुना था तो आपको यकीन नहीं आएगा, मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे याद है सर, मैं भी थी उस शो पे जहाँ पे आपने उसके बाद बताया भी था कि वो गाना आपने रिक्वेस्ट भी किया था, कैसे रिक्वेस्ट किया था वो सब आपने बताया था, मुझे याद है वो सब। हाँ, और वो हमने गाया भी था। हाँ। हमने कहा भाई कुछ लाइनें याद हैं जो कि ज़हन में इस वक्त हैं, हाँ तो वो हमने गा दिया उस वक्त। और मेरे को बड़ा मजा आया, हाँ, बहुत मजा आया कि यार ये इसकी आवाज थी या क्या था। सूर्या की आवाज का भी जवाब नहीं भाई, मानना पड़ेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। लेकिन एक ऐसी आर्टिस्ट है जिनका मैं एक गाना लगाने वाली हूँ, जिनके साथ लता जी के काफ़ी सारे ड्यूएट्स थे। और लता जी ने खुद एक इंटरव्यू में बताया भी था कि ये उनकी बहुत ही अच्छी दोस्त रही। एंड ये एक गाना मैं आज आपके सामने पेश करने वाली हूँ। अगर आप लाइन पे रहना चाहते हो, रेडियो ऑन मत करना, लेकिन सिर्फ फ़ोन पे सुनना। ये गाना मैं लगा सकती हूँ आपके लिए। आपको बताना है कि ये जो दूसरी आवाज़ है, इसमें शायद 3 आवाज़ें हैं, क्योंकि मुकेश साहब की आवाज़ है, लता मंगेशकर की तो है ही, उनके साथ एक और फीमेल आवाज है। हाँ जी, एक और फीमेल प्लेबैक सिंगर की आवाज़ है, जिनको लता मंगेशकर जी ने बोला था कि उनकी 1947 से उनकी दोस्ती थी उनके साथ। और हाँ, एंड मतलब बहुत अच्छे दोस्त थे जब तक वो गुजर गई। एंड इनफैक्ट कहते हैं कि उन्होंने उनके काफ़ी सारे गाने लता जी, और जब आशा भोसले जी आई तो शी लॉस्ट हर सॉन्ग्स टू देम, क्योंकि तब तक उनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हो गया था कि मतलब वो फोकस नहीं कर पा रही थी काम पे। बहुत सारी, वो मैं बाद में बताऊंगी, वो बहुत क्लू दे दूंगी तो आपको पता चल जाएगा कि कौन है। तो सुनिएगा, अभी फोन पे ही रहिएगा, सुनिएगा। मैं गाना पकड़ के रखा हूं। हाँ, हीरोइन भी शायद आप पहचान लेंगे, क्योंकि काफ़ी खूबसूरत हीरोइन थी उस ज़माने की। तो सुनिएगा एंड मुझे यहाँ पे बताइएगा कि ये और दूसरी या तीसरी सिंगर कौन है। सो कान लगा के ध्यान से सुनिए सर, हियर यू गो। फोन पे ही सुनिएगा के, हियर यू गो। आग हमारे सीने में, हम आग से खेलते आते हैं, टकराते हैं जो इस ताकत से वो मिट्टी में मिल जाते हैं। तुमसे तो पतंगा अच्छा है जो हंसते हुए जल जाता है, होय 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 होय। वो प्यार में मिट तो जाता है पर नाम अमर कर जाता है, पर नाम अमर कर जाता है। हम भी हैं, तुम भी हो, दोनों हैं आमने सामने। देख लो क्या असर कर दिया प्यार के नाम ने। गरजते सागर हैं, कोई हमको बांध नहीं पाया। कोई हम मौज में जब भी लहराए, सारा जग डर से थर्राया। हम छोटी सी वो बूंद सही है, सीप ने जिसको अपनाया। होय 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 होय। खारा पानी कोई पी न सका, एक प्यार का मोती काम आया, एक प्यार का मोती काम आया। हम भी हैं, तुम भी हो, दोनों हैं आमने सामने। देख लो क्या असर कर दिया प्यार के नाम ने।
सबसे मीठा। नैनों से जो नैना टकराए तो कौन हारा और कौन जीता। ये दिल का कमल सबसे सुंदर, मेहनत का फल सबसे मीठा। होए होए होए। इस प्यार की बाजी में हंसकर जो दिल हारा वो सब जीता, जो दिल हारा वो सब जीता। हम भी हैं तुम भी हो, दोनों हैं। तो मोहम्मद मचिन साहब, क्या आपने पहचाना? वो जो बड़ा मुश्किल। हाँ, बड़ा मुश्किल, मगर ये फिल्म मैंने देखी नहीं है, मगर गाना जरूर सुना है। हाँ। तो इसमें मेरे को तो शमशाद की आवाज नजर आती है भाई। नहीं सर, मैं थोड़ा और लगाऊंगी। यहाँ पे सुनो, ये जहाँ पे उनकी आवाज आती है, जिस सिंगर की आवाज आती है, यहाँ पे ध्यान से सुनो, ठीक है? ये बताओ कौन सा साल का है ये, कौन सा साल है ये? ये शायद 1960 समथिंग में आया सर ये, एंड अच्छा, ब्लैक एंड वाइट फिल्म है, 1960 में आया। एंड ये एक ऐसी फिल्म है जो बहुत ही बड़ी हिट हुई। इसमें एक और ब्यूटीफुल गाना है जो हमारी दीपा जी ने कल बताया था। दीपा जी ने बताया था या उनके आई एम नॉट श्योर किसने बताया था। ओ बसंती पवन पागल। हाँ, कौन सा मूवी था, याद आ गया? ये वैजयंती माला के ऊपर फिल्माया गया है। नहीं, ओ बसंती नहीं, ठहरो, ये संगम का तो नहीं है। नहीं, संगम का नहीं है। ओ बसंती पवन पागल वैजयंती माला पे नहीं, लेकिन एक और खूबसूरत साउथ इंडियन एक्ट्रेस थी उस जमाने की। ये क्या साउथ की थी ये सिंगर? नहीं, सिंगर साउथ की नहीं थी, सिंगर साउथ की नहीं थी। अच्छा, बॉम्बे की थी। हाँ, बॉम्बे में और को आमिर भाई कार्नाट की थी, शांता आप्टे थी, और तीसरी सिंगर तो कोई मेरे को तो नजर नहीं आती। सुनो, अभी सुनो, ध्यान से सुनो। नहीं सर, ध्यान से सुनो, एक बार और बजाती हूँ, ध्यान से सुनो, ठीक है? Here you go. हाँ, प्लीज। इस फूल पे मरती है दुनिया, है कौन सा फल सबसे मीठा। पता चला? हेलो, लग रही है। कौन है? शमशाद बेगम। नहीं सर, इनकी आवाज शमशाद बेगम की आवाज से पतली है और थोड़ी स्वीट भी है। शमशाद बेगम जी का टिम्बर कुछ अलग ही है, लेकिन हाँ, शायद मुश्किल पड़ रहा है, लेकिन सोचो, अगर आपको थोड़ा और लगाओ। हाँ, जरा लगाओ तो सही। और तीसरी सिंगर कौन हो सकती है भाई? तो वो जो ओए मैंने साल पूछा था कि भाई ये हेमलता तो नहीं है? नहीं, 1960 है सर। क्या पंडित है ना, पंडित के नाम से एक औरत थी गाने वाली? नहीं, सुलक्षणा पंडित, वो नहीं। सुलक्षणा पंडित, हाँ, नहीं, वो नहीं तो है। वो भी नहीं थे, फिर हेमलता भी नहीं, वो सब बाद में आए सर, वो सब बहुत बाद में आए। वही मैं सोच रहा हूँ कि ये कौन होती है सर। मूवी का नाम मैं बता देती हूँ आपको, ये पद्मिनी पे फिल्माया गया है। पद्मिनी और चंचल आई थिंक वाज दी अदर एक्ट्रेस जो इस गाने में है। राज कपूर साहब का, शंकर जयकिशन साहब का म्यूजिक डायरेक्शन है। एंड अरे हाँ, वो क्या नाम आपके? ओ मेरे खुदा, ओए राज कपूर और पद्मिनी की फिल्म थी नहीं ये? हाँ जी, राज कपूर और पद्मिनी जी की फिल्म थी। हाँ, मैं समझ गया। वो क्या साले का नाम, बड़ा प्यारा नाम है। जिस देश में गंगा बहती है। हाँ जी सर, जिस देश में गंगा बहती है उसी मूवी का गाना है। लेकिन आपको पहचानना है कि लता जी के साथ इस टीम में, देखिए इस गाने में आवाज़ें हैं महेंद्र कपूर साहब के, मुकेश के हैं, और मन्ना दा का भी आवाज़ है इसमें। क्योंकि देखिए एक चीज़ है, उस ज़माने में ऐसे होता था कि इतने घुल मिल के गाते थे सभी। ऐसा समझ गया, यू आर राइट। हाँ, ऐसे लगता था कि ग्रुप सॉन्ग है, मतलब कोई ऐसा नहीं था कि मुझे इतने लाइन मिले। यहाँ आजकल के ज़माने में जो कवर सॉन्ग्स भी गाते हैं, लोग बोलते हैं मुझे तो सिर्फ 2 लाइन गाने को मिला, मेरे को 4 लाइन मिला। भाई एक लाइन भी हो तो गाना ही है ना भाई। एग्जैक्टली, एंड अलग अलग कैरेक्टर्स के अलग अलग लाइंस होते हैं, इतनी खूबसूरती से उन्होंने निभाया।
तो इसी वजह से हम लोग आज टीम प्लेयर इसमें देखिए लता जी के अभी तक कोई बोल नहीं आए हैं, मतलब वो सब ग्रुप में हैं जो वो ग्रुप में है सब। हाँ, एंड जो बिट है जो वो गा रही हैं वो सिर्फ ओए होए अभी तक ऑलमोस्ट दो अंतरा खत्म हो गए और एक मुखड़ा भी खत्म हो गया, अभी तक ऑलमोस्ट 2 minutes इनटू द सॉन्ग उनकी सोलो को कुछ नहीं आई है। सो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू एस्टैब्लिश। हाँ जी, तो पता नहीं चला तो कोई बात नहीं, सुनते रहिएगा, किसी और बंधु से पूछ के देखते हैं कि वो क्या कहते हैं, ठीक है? हाँ, बट थैंक यू वेरी मच, आई एम वेरी सॉरी। अरे नहीं, सुनते रहिएगा, आपको पता चल जाएगा कि अरे है ये तो मुझे मालूम था, तो सुनते रहिएगा सर। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग इन। नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है पैम पैम में। कौन है जी? हाय पैम पैम। मीनाक्षी जी। पैम पैम कैसे हो? एकदम बढ़िया, आप कैसी हो? बहुत खास हूँ आज। आज आलतू बाबा नहीं है ना? नहीं आज भी खास रही हूँ, इसीलिए खास हूँ मैंने बोला। आलतू बाबा है, आलतू बाबा को एक मीटिंग हमने सोचा कि एक्चुअली हमने सोचा ब्रेक लेके काम पे लगा दे आलतू बाबा को, ऐसे बोलो। हाँ, आज मैंने बोला जाके 15-20 मिनट का मीटिंग अपडेट देना है, तो तुम दे के आ जाओ, मुझे नहीं जाना है अभी, हमारे बंधुओं के साथ मुझे वार्तालाप करनी है। तो अरे वाह। हाँ, तो बताइए मीनाक्षी जी, आपने पहचाना? हाँ, देखिए मैंने आवाज से नहीं पहचाना, मैं टू बी ऑनेस्ट। हाँ? आपने जो डिस्क्रिप्शन बताया था गाना लगाने से पहले, हाँ, जो क्लूज दिए थे, मैंने उससे पहचाना। तो आप बात कर रहे हैं गीता दत्त की? हाँ जी बिल्कुल। दैट इज सो ट्रू। हाँ, इसीलिए मेरे मुंह से ना मैं कुछ टिकता नहीं है मेरे पास, मैं वो पट बोल देती हूँ, क्योंकि हाँ एक ऐसी आर्टिस्ट जिन्होंने अपनी जिंदगी और अपनी मतलब सब कुछ, उनका करियर भी इतनी खूबसूरत आर्टिस्ट इन द सेंस दैट व्हाट अ लवली सिंगर। उनकी लाइफ पूरी, क्योंकि मैरिटल प्रॉब्लम्स हो रही थी उनके, हाँ गीता दत्त जी ने गाया है, आपने सही पहचाना। तो लता जी और गीता दत्त जी ने काफ़ी सारे गाने इकट्ठे गाए हैं। इनफैक्ट लता जी ने गीता दत्त जी के डेथ एनिवर्सरी पे भी उन्होंने शेयर किया था कि ये मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त थी, कि that we were the longest, like from 1947, if there was one person I could talk to, that was her karke. So yeah, and unfortunately Geeta Dutt ji also, the whole family in fact, everybody died of suicide and sort of ended their life. Yeah. So it's anyway, but I just wanted to, good यार, not bad. मैंने सोचा आप गूगल मार के आंसर बोल रही होंगी। नहीं, क्योंकि मैंने कल ही एक इंटरव्यू सुना था लता मंगेशकर जी का, जिसमें उनसे क्वेश्चन पूछा गया था कि आपका और आशा ताई का काफी समय तक बोलचाल नहीं रहा था और राइवलरी थी काइंड ऑफ, और आप उन्हें काम नहीं करने देना चाहती थी इंडस्ट्री में। इस तरह का उनसे क्वेश्चन पुट किया गया था, तब उन्होंने उसका आंसर दिया था, साथ में यही बोला था कि मेरा और आशा का डिफरेंट स्टाइल था गाने का। तो उसको जो गाने मिले वो उसको मिलते ही थे, और जो मुझे गाने मिलते थे वो मिलते ही थे, और गीता के जाने के बाद उन्हें और गाने मिलना शुरू हो गए। उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया था। हाँ, करेक्ट। तो इसी से भी मुझे लगा कि आपने जब बोला था ना कि आशा जी को गाने मिलने शुरू हो गए थे, तो फिर मुझे श्योर हो गया कि हाँ आप गीता दत्त के बारे में बात कर रही हैं। हाँ, एग्जैक्टली। तो इनफैक्ट आई थिंक उसी इंटरव्यू में वो कहती हैं कि, नहीं शायद एक और इंटरव्यू, मैंने पता नहीं कितने सारे उनके खुद के इंटरव्यूज देखे, उसमें कहती हैं कि मैं सोच रही थी कि शायद उनका अनबन हो गया था ओपी नैयर साहब के साथ, क्योंकि उनका ओपी नैयर साहब के साथ एक भी गाना नहीं है। Interestingly, she doesn't have any songs with Opi Nair. All the songs are with music directors who are everybody she's worked with except Opi Nair. तो उन्होंने वो इंटरव्यूअर ने पूछा कि ऐसा कोई निर्देशक जिनके साथ, संगीत निर्देशक जिनके साथ आपने काम नहीं किया हो और आपने काम करना चाहा हो, तो उन्होंने बोला कि ओपी नैयर। She said maybe for his choice of songs, maybe I was not his choice of singer. And yeah, she specifically stated that. And in fact, Open Air Sahab, in fact, Asha
ताई वही बोलती हैं कि शी ओज हर career basically to Open Air because she got almost all of the songs that Open Air, and of course he used to also patronize Geeta Dutt. He used to like her music as well. So yeah, correct, आपने सही पहचाना. तो कैसा लग रहा है आपको आज का शो? बिल्कुल इंटरेस्टिंग लग रहा है. कल एक अलग स्टाइल का ट्रिब्यूट था, आज एक बिल्कुल यूनिक स्टाइल का ट्रिब्यूट है. तो वो ऐसा ट्रिब्यूट हम केवल रेडियो डी हॉटीज पर ही सुन सकते हैं और देख सकते हैं. तो थैंक यू फॉर दैट. ओह एब्सोल्युटली. एंड अगर आपको पसंद आ रहा है प्लीज़ हमारा यूट्यूब लिंक शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने because this is we try to make it interesting, we try to get as much information as possible, अगर fun information ऐसे बोलो. तो वो हम लोग लेकर आते हैं. तो मैं एक और सिंगर के बारे में बताऊंगी, अगर आपको पहचान में आ गया तो बता देना, ठीक है? I'll give you a clue. ठीक है. अभी आपको ऑन एयर अभी बोलूं या ऑनलाइन? मैं वापस से भी कॉल कर सकती हूँ ताकि और बंदूक को भी चांस मिले, क्योंकि मैं एक बार तो बता सकती हूँ. तो लेट अदर बंदूक कॉल, अदरवाइज आई विल कॉल अगेन. Perfect. Thank you so much for calling in. And have a beautiful, fantastic evening. Bye-bye. Bye. तो बंधुजान, आप सुन रहे हैं टीम प्लेयर ट्यूसडेज, टीम प्लेयर लता मंगेशकर, अ स्पेशल राइट हियर ऑन द पैम पैम शो. ये जो शो है, अगर आप पहली बार हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो हम आपको बता दें यार, हम लोग ऑलमोस्ट 13 साल होने को है दैट वी बीन ऑन द एयर एंड वी बीन परफॉर्मिंग राइट हियर. परफॉर्मिंग, यस एग्जैक्टली बंधुजान, ये भी तो एक आर्ट है ना. तो हम लोग परफॉर्म करते आ रहे हैं राइट हियर ऑन रेडियो डी हॉटीज. एंड जो हमें फेसबुक पे कमेंट्स लिख रहे हैं, मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि आई डोंट नो, मैं आलतू बाबा के कंप्यूटर पे हूँ, उसके इतने सारे स्क्रीन ओपन होते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है कि कौन सा स्क्रीन कहाँ है. तो मैं ट्राई करूँगी अपने फ़ोन से देखने के लिए कि आपके कॉमेंट्स क्या है, सो दैट आई कैन रिस्पॉन्ड टू योर कॉमेंट्स. मैं इग्नोर नहीं कर रही हूँ. I'm trying to multitask at the same time and do the show. But this is a show that's a production of this wonderful non-profit organization called Media Mahima Bandhujan, which is a South खास होस्ट हूँ क्योंकि बहुत खास ही हो रही है. This is a South Asian voice, a very खास South Asian voice for the South Asian community Bandhujan. So आपको न्यूज़ एंड इन्फॉर्मेशन सुबह गुड मॉर्निंग वे में मिलता है, एंड देन ऑफ कोर्स अ लॉट ऑफ फन इन्फॉर्मेशन ऑन द पैम पैम शो. तो अभी थोड़ा और ये गाना सुनते हैं. विल कम बैक एंड आई विल गिव यू द क्लू फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. हियर यू गो. नैनों से जो नैना टकराए तो कौन हारा और कौन जीता? ये दिल का कमल सबसे सुंदर, मेहनत का फल सबसे मीठा. होए होए होए. इस प्यार की बाजी में हंसकर जो दिल हारा वो सब जीता, जो दिल हारा वो सब जीता. हम भी हैं तुम भी हो, दोनों हैं आमने सामने. देख लो प्यार कर दिया प्यार के नाम ने. इतना सा जिगर इतना सा है दिल, क्या बात बड़ी करने आए. क्या पैदा होगी आग अगर पत्थर से न पत्थर टकराए. नन्ना सा ये दिल आंखों में न हो तो पल में अंधेरा हो जाए. इतना सा ये दिल तो दे दे अगर सारा जग तेरा हो जाए, सारा जग तेरा हो जाए. हम भी हैं तुम भी हो, दोनों हैं आमने सामने. देख लो क्या कर दिया प्यार के नाम ने. हम भी हैं
हम भी हैं तुम भी हो, दोनों हैं आमने सामने. And that particular song was from the movie जिस देश में गंगा बहती है. And कितने ensemble of what a beautiful ensemble cast of singers बंदजन. मन्ना दा, महेंद्र कपूर, हमारे मुकेश जी, and of course the one and only Lata Mangeshkar ji, and with her of course Geeta Dutt ji. And if you notice, until almost 4 minutes into the song, Lata ji ki solo line nahi aati hai. Unka sirf oi hoi, and then that alap that comes in, that's pretty much what she sings throughout. So एक इंटरेस्टिंग बात उन्होंने बोली थी जो मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया था इन इट्स इंटायरिटी, कि जब ये होस्ट ने, इंटरव्यूअर ने उनसे पूछा था कि आपको कभी ऐसा नहीं लगता था कि जब टेक करना पड़ता है, राइट? सो कितने टेक कराते थे? रिहर्सल तो हमने कल सुना कि 11-13 बार, कभी कभार 20-25 बार उनको रिहर्सल करना पड़ता था. एंड 10-15 दिन, 1 महीने तक कभी कभार रिहर्सल करना पड़ता था एक गाने का. मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, सीरियसली. सो शी सेज दिस इन हर इंटरव्यू. And then she said it like, it's very, very casual. तो उन्होंने पूछा कि रिहर्सल तो इतनी बार ठीक है, लेकिन टेक के लिए कितने टेक? आप सिंगल टेक, लोग बोलते हैं कि सिंगल टेक आर्टिस्ट, वाह सिंगल टेक आर्टिस्ट. बोले तो रिकॉर्डिंग करते हैं, and if the recording goes on very well, right, and if the music director is happy, they'll say take, meaning it's done, we don't have to do another take. Or they'll say take 1, take 2, take 3, they'll take different takes. ये filming में भी होता है, and it also happens in audio recordings. तो लता जी कहती हैं कि कभी कभार 10-15 टेक. तो ये कहते हैं टेक के लिए 10-15 टेक. हाँ, कभी कभार 21-22 टेक भी करते थे. तो उन्होंने कहा कि वो किस वजह से, कभी कभार ऐसी होती थी, और जैसे म्यूज़िक डायरेक्टर को पसंद हो, जब तक उनको पसंद ना आए तो हमें टेक करना पड़ता था. तो उन्होंने कहा कि अगर सोलो है तो ठीक है, लेकिन अगर आप आप भी जो आपके पियर्स थे, जैसे रफ़ी साहब थे, जैसे मुकेश साहब थे, या किशोर कुमार थे, इन लोगों के साथ जब आप गाते थे तो आपको कभी डर नहीं लगता था कि अगर आपसे गलती हो गई तो कैसे होता, या उनसे गलती हो गई तो उन्होंने कहा हाँ, इसी वजह से हम लोग इतना रियाज़ करते थे, इतना प्रैक्टिस करते थे कि कभी हमारी वजह से उनको बार बार ना टेक देना पड़े, मेरी वजह से कभी नहीं देना पड़े. तो उन्होंने कहा, उल्टा पूछा कि अगर उनसे कोई गलती हो तो आपको कैसे लगता था? शी सेड जैसे उन्हें लगता होगा जब मैं गलती करती होगी, तो वो सब होता है. वी हैव टू मैनेज एंड वी हैव टू एडजस्ट. क्योंकि आजकल के ज़माने में, उन्होंने कहा आजकल के ज़माने की तरह नहीं है जहाँ पे एक लाइन गा दिया कट, दूसरा लाइन गा दिया कट, तो यहाँ को इसको यहाँ पेस्ट करना और उसको वहाँ पेस्ट करना, और जो सॉफ्टवेयर यूज़ करके सब ठीक कर देते हैं, वो नहीं था हमारे ज़माने में. उस ज़माने में तो हमारा सेशन आर्टिस्ट होते थे, जहाँ पे सभी एक फैमिली की तरह आके एंड सभी इकट्ठे घुल मिल के हम लोग एक गाने को खूबसूरती से पेश करने के लिए, और वो फिल्म के अंदर कैसे फिट होता है उस हिसाब से हम लोग प्लान करते थे गाने को. तो इसीलिए हमें इट वाजंट अ सेकंड थॉट कि ओहो मुझे रफ़ी साहब की वजह से बार बार गाना पड़ रहा है. देयर वाज नेवर दैट काइंड ऑफ अ थिंग. सो दैट्स समथिंग दैट आई वांटेड टू शेयर, कि it talks about the kind of team players they were. Each and every single person was in that zamana. It wasn't like anybody had one कि हो ये ऐसी है, मैं इससे बेहतर गाता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है. इनफैक्ट आज हम लोग जो भी कवर कर रहे हैं, जिन सिंगर्स के बारे में, सभी मोस्टली फीमेल सिंगर्स हैं जिनके साथ इनके ड्यूएट्स हैं. वक्त बहुत कम है, वी विल प्रॉबली डू अनदर वन वेयर शी इज़ संग विद ऑफ कोर्स द ऑल टाइम ग्रेट्स. मैंने एक और ब्यूटीफुल इंटरव्यू देखा बंधुजन. हो सके तो हम लोग उसका एक
एपिसोड बनाएंगे हमारे YouTube चैनल पे. अगर आप हमें फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आपकी लॉस है. जाके YouTube पे रेडियो डे हॉटीज फॉलो करो. इट इज़ एन एक्सर्प्ट दैट वी फाउंड. इट्स एन अमेजिंग इंटरव्यू वेयर Kishore Da and Lata Mangeshkar are in that interview, and it is just so heartwarming to listen to that conversation between two peers, two amazingly gifted people. एक को सारे गामा पधनी सारे उसका कोई मतलब फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं है, और दूसरी आपको तो मालूम है कि उनको माँ सरस्वती भी बुलाया जाता है. शी वॉज सच अ अकम्प्लिश्ड सिंगर, बट येट ईच ऑफ देम have ruled and continue to rule and inspire the lives of so many people ahead of after them, and for generations to come that will continue. तो अभी एक और ऐसे सिंगर के साथ जो लता जी ने गाया था, उनका गाना बजाऊंगी. आपको पहचाना पड़ेगा ये कौन है. इनकी आवाज़ भी बहुत ही सुरीली है. इनफैक्ट इनके बारे में हमारे महिमा जी ने सभी के बारे में, और मोहम्मद रफ़ी साहब, लता, मुके, सभी के बारे में किया था हमारे यहाँ शो अनमोल नगमे में. लेकिन ये जो सिंगर हैं स्पेसिफिकली, मैं ज़्यादा क्लू नहीं दूंगी, बाद में बताऊंगी कि ये इस सिंगर का क्या स्पेशलिटी है. तो आपको पहचानना पड़ेगा सिर्फ गाना सुन के कि ये सिंगर कौन है जिनके साथ ये गा रही हैं. एंड ये गाना सुन, इस नंबर पे आपको कॉल करना है 4089122479. इसके बाद मैं बताऊंगी थोड़ी बहुत ट्रिविया जो लोग शेयर करते हैं, बट आई थिंक everything should be taken with not a grain but a bag of salt when it comes from the media. तो सुनिएगा, एंजॉय कीजिएगा. एक और खूबसूरत गाना लता ताई और हमारी जो ये सिंगर हैं, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ है इनकी भी बहुत खूबसूरत गाने हैं, लेकिन उनकी इतनी प्रोलिफिक नहीं है. मैक्सिमम उन्होंने शायद 800 गाने गाए होंगे कंपेयर टू द थाउजेंड्स दैट लता जी एंड आशा भोसले जी sang. तो हालांकि नहीं, मैं और नहीं बताऊंगी, आप कॉल करके बताइएगा कि ये कौन है. Here you go. कभी परसों ऐसे ही बीते बरसों, हमारे सुनते ही नहीं साजना, देखो जी सुनते ही नहीं साजना. कभी आज कभी कल कभी परसों ऐसे ही बीते बरसों, हमारे सुनते ही नहीं साजना, देखो जी सुनते ही नहीं साजना. कभी आज कभी कल कभी परसों ऐसे ही बीते बरसों, हमारे सुनते ही नहीं साजना, देखो जी सुनते ही नहीं साजना. स्टूडियो पे कॉल करने का नंबर है 4089122479. हेमंत दा का म्यूजिक डायरेक्शन है. बंधुजन सुनिएगा, एंजॉय कीजिएगा. ब्यूटीफुल गाना. वाह, कितना क्यूट गाना है. It's so sweet, and look at the voices. I mean, I'm just
मुझे ना ऐसे लगता है कि यार काश हम उस ज़माने में पैदा हुए होते जहाँ पे वी कुड हैव एक्चुअली वॉच दीज पीपल परफॉर्म लाइव. इतनी ब्यूटीफुल आवाज़ें एंड हाउ ब्यूटिफुली दे होल्ड देयर ओन, वन डजंट फेड आउट अगेंस्ट द अदर एंड इट्स जस्ट इनक्रेडिबल, राइट? जब आप सुनते हो एंड ऐसे गाने हमें रोज़ सुनने को नहीं मिलते हैं, ढूंढ ढांड के लेकर आना पड़ता है हम लोगों को. और थैंकफुली इंटरनेट का ज़माना है. अगर हमारी महिमा जी होती तो शायद वो उनकी नॉलेज में से निकालती, लेकिन वी आर ग्लैड दैट वी एक्चुअली डग थ्रू सम ऑफ हर आर्काइव्स ऑफ ईच ऑफ दीज सिंगर्स एंड वी फाउंड दिस इंफॉर्मेशन. हम आपसे पूछ रहे हैं, ये खूबसूरत सुरीली आवाज़ लता जी की तो है, दूसरी आवाज़ किसकी है? कॉल करें 408-912-2479. हेलो पैम पैम, कौन बात कर रहे हैं जी? हमारी सुनते ही नहीं आलतू बाबा. आलतू बाबा यहाँ पे नहीं है, मैं हूँ फालतू. आई नो पता है फालतू. अरे तुम आज अकेली पड़ गई, कहाँ गए आलतू बाबा? आलतू बाबा तो यहीं पे है यार, लेकिन हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ा. वी हैड टू टेक अ ब्रेक और वन ऑफ अस हैड टू स्टे एंड द अदर हैड टू गो, सो वी डिसाइडेड दैट वन ऑफ अस विल स्टे एंड डू इट. तो ऑन द स्पॉट डिसीजन लिया. तो बहुत ही जो तुमने बोला ना फालतू रानी की काश, तो मैं हमेशा मैं अपनी बेटी से बोलती रहती हूँ एक्चुअली कि काश मैं वो जमाने में पैदा होती. तो मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि इट वाज सो हैपनिंग, लाइक लॉट ऑफ चेंजेस ना. तो इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया, फिर उसके बाद आई नो बहुत ही क्या बोलते कष्टदायक होंगे, डेफिनेटली चैलेंजिंग, लेकिन उतना ही इंटरेस्टिंग होगा लाइफ. पता नहीं, ऐसा हमको लगता है. हाँ एग्जैक्टली. आई थिंक रिगार्डलेस, राइट, जब ये लोग बात करते हैं कि वो गोल्डन एरा था, मेरे को लगता है यार हम भी गोल्डन एरा में पैदा होते क्या? शायद पैदा हुए होंगे, यू नेवर नो, राइट? या इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में मर गए होंगे, पता नहीं, आई डोंट नो. मेरे ऐसे ख्यालात हैं कि शायद मैं शहीद हुई थी उस जमाने में. ऐसे करके मुझे भी बिल्कुल ऐसा लगता है. हाँ. तो ये जो गाना इतना सुंदर है, मैंने कभी नहीं सुना, लाइक हाँ. तो इतने और भी मतलब किस्से उभर के आ रहे हैं. तो ये एक हफ्ता तो चाहिए ही चाहिए लता जी को श्रद्धांजलि देने के लिए. तो ये बहुत ही सुंदर. तो मुझे लगता है ये सुमन कल्याणपुर का वॉइस है. लगता है कि 100% पॉजिटिव हो. 100% लगता है, लेकिन क्योंकि उन दोनों का वॉइस बहुत ही मैच करता था. हाँ. तो जब मैंने अभी सुना तो ऐसा लगा कि एक ही बंदी दोबारा गा रही है, लेकिन थोड़ा सा फर्क था, लाइक वेरी माइनर. हाँ. ओह, सेकेंड वन. ओह रियली? यस. आपको भी ऐसा लगा? हाँ, थोड़ा सा डिफरेंस लगा मुझे. करेक्ट. मुझे लगता है कि सुमन जी का थोड़ा इट वाज मोर थिनर द वॉइस, और मोर लाइक स्क्रीचियर, क्या बोलते हैं उसको, मतलब सॉफ्टनेस थोड़ा वो ज्यादा था. जब वो हाई नोट लेती थी तो हाँ. उनका वेवलेंथ थोड़ा अलग था. जितना डेप्थ लता जी के वॉइस में दिखता था, उनका थोड़ा कम दिखता था. एंड मैं अगर आपको बताऊं कि ये सुमन कल्याणपुर है, आप क्या कहोगी? कौन सुमन कल्याणपुर? वो दूसरी आवाज सुमन कल्याणपुर की ही थी. तो थैंक यू. तो मेरा अंदाजा गलत नहीं था. एंड इनफैक्ट सुमन कल्याणपुर जी को लोग कहते हैं कि ये अफवाह है. ऑब्वियसली हम लोग तो कंफर्म नहीं कर सकते क्योंकि ना तो ओपी नैयर साहब अभी जिंदा है. सुमन कल्याणपुर जी से पूछेंगे तो ऑब्वियसली वो कुछ नहीं बोलेंगी इसके बारे में. तो शी इज थैंकफुली गॉड ब्लेस हर सोल, 85 years old, she is still alive. And she does say that she shared a very nice camaraderie with Lata Mangeshkar ji. लेकिन लोग कहते हैं कि ओपी नैयर साहब actually groomed Suman Kalyanpur even. He was willing because he didn't want to work with Lata. अच्छा. हाँ, so that he would he gave Suman Kalyanpur an opportunity also, and the fact that when she was coming up, so there was this whole big this thing, right? People say that Suman Kalyanpur didn't get as many songs or as many choices because Lata ji's mafia was at work.
You know what I mean? So they would say that. Yes, मैंने भी सुना है. हाँ. Yes. तो लोग कहते हैं, I mean बोलने में है, I mean, you know, she probably, who knows, whatever happened, right? But at the same time, the two of them have many duets that they have sung together. It's not only this one. And you can make out, even in this song, the which voice is Suman? Yeah, first line and second line, yes. Yes, and it sounds like one person is singing. Itni khoobsurat hai, right? So I think the song is also very, very nice. So, you know, आपने सही पहचाना. तो मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ, ठीक है? Let's see if you can identify. मीनाक्षी जी ने कहा कि जब मैं वो किस्सा सुनाऊंगी, वो शायद वापस कॉल करेंगी, ताकि किसी और को मौका मिले to be able to identify who the singer is, okay? ठीक है, मैं रखती हूँ, फिर कोई और कॉल कर सकते हैं अगर उन्होंने आइडेंटिफाई किया तो. हाँ, अगर किसी ने आइडेंटिफाई नहीं किया ना, दीपा नहीं मेरे साथ अगर किसी और ने आइडेंटिफाई नहीं किया ना, तो यहाँ पे ज़रूर वापस कॉल करने का, ठीक है? या अभी मैंने एक लोचा कर दिया, मेरे को मालूम नहीं, यार तो मेरे को हेल्प ही नहीं किया. मेरे को समझ नहीं आ रहा है कहाँ कर्सर कहाँ चला गया, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है क्या दबाऊं, कैसे दबाऊं, क्या करूं. तो ओ लॉर्ड, नहीं फालतू नहीं, तुम अपने कंप्यूटर से बजाती हो ना गाना, वो कर सकते हो. नहीं मैं आलतू के कंप्यूटर, मेरा कंप्यूटर लेके चला गया यार मीटिंग के लिए वो. तो अभी मेरे को फिगर आउट करना पड़ेगा ये इसका कर्सर कहाँ गया. तो ठीक है, देखते हैं. लेट्स सी इफ दिस वर्क्स. यस. Okay. और ये कॉल मैं नाम बोलूंगी तो पता नहीं निकल जाएगा क्या, सस्पेंस. एक और सिंगर थी उस जमाने की, उन्होंने बहुत ही शायद कम गाए, सुमन कल्याणपुर जिन उनसे भी कम गाने गाए होंगे इन्होंने. उनका नाम था, मैं बता दूं नाम. कौन बोलो? शारदा. लता जी के साथ है कोई वही वो भी, that can be interesting. I don't think she has any duets with Lata ji. We did look for, we looked for a lot of stuff. We looked for even she's got some duets with even Zora Bai. We went back to that era also, and we tried to pull up songs ki, you know, who are the other people that she had songs with. They're not really songs to write home about, but I didn't find anything with Sharda ji. I can look it up. अगर आपको मिला तो मुझे बताइएगा. We'd love to play that for everybody. लेकिन ये जो गाना है ये थोड़ा और बजाऊंगी, and I'll try to figure out how I can find that cursor so that I can tell you about the next singer. मैंने आपको एक ड्यूएट बताया था, of course everybody knows, आशा जी के साथ. तो हो सके तो आप बाद में वो भी गाना we'll probably try to end with that song. आशा जी के साथ तो आलतू ने एक और गाना लाइन अप किया था दादा जी का. उनके इतने सारे गाने हैं. I mean the two sisters have sung so many songs together. Yeah, they got tons of songs together. ये भी ज्यादा लोगों को मालूम नहीं होगा. वो सिर्फ राइवलरी करके ही वही मीडिया जो फालतूरानी तुमने बताया, वो बहुत ही 100% की बात बोली तुमने कि वो नॉट अ पिंच ऑफ सॉल्ट और ग्रेन ऑफ सॉल्ट, पूरा भर के टन ऑफ सॉल्ट. That's true actually. लेना पड़ता है. Yeah. Thank you. तो I'm gonna मिल गया कर्सर. Okay, awesome. Yay. मैं डर गई थी. Oh my God, I was so worried. ठीक है, मिल गया. तो ठीक है. So ये गाना और सुनो, and I have a very interesting kissa that I want to share, which is talking about when Lata ji talked about this as her most unforgettable duet experience in life. The most unforgettable duet experience or unforgettable experience in life. अच्छा. Yeah. वो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी, लेकिन इस गाने के बाद मैं फोन रखती हूँ तो ताकि Aditi and other people, if they are calling, they can reach you. ठीक है, sounds good. Here you go. Thanks. तो बंदीजान सुनिएगा the rest of the song while I line up another Gana, which is of this other interesting kissa that I'm going to talk to you about. The number to call us at the studio 408-912-2479.
देखो जी सुनते ही नहीं साजना, कभी आज कभी कल कभी परसों ऐसे ही बीते बरसों हमारे, सुनते ही नहीं साजना, देखो जी सुनते ही नहीं साजना। जान ये देखना, एक्चुअली कभी आज कभी कल कभी परसों कभी नहीं सुनते हैं, ज़माने बीत गए कहाँ सुनते हैं साजना अब हमारी बात, राइट? Actually, this is such a cute little song that I think, that Hemanta composed. And the lyrics were Shailendra Saab ke lyrics that, of course, our beautiful singers, Suman Kalyanpur ji and, of course, Lata Mangeshkar ji sang of Hemanta. A wonderful composition, and I love this song. It's been, I only heard it when I was researching for this particular show. तो अभी मैं आपको एक मज़ेदार किस्सा सुनने वाली हूँ. तो ये जो सिंगर हैं, एक्चुअली अगर लता मंगेशकर जी का स्टार सिंगर बनने का और जो मतलब क्या कहते हैं, उनको इतने सारे गाने मिलने का क्रेडिट जाता है टू एन एक्सटेंट. वो एक उनका जो पहला गाना था जो स्टार हिट गाना बन गया, महल मूवी का आएगा आने वाला. ये जो सिंगर है, एक्चुअली शी वाज सपोज्ड टू बी सिंगिंग दिस ओरिजिनली. अपेरेंटली शी लॉस्ट दिस सॉन्ग टू लता मंगेशकर जी. This singer was actually somebody who was supposed to be a really big tomboy, very playful, but was able to like belt out songs. Like she'd listen to it on the radio and she'd be like, tak. She'd be able to sing the song with all lyrics and sur intact and everything perfectly, it seems. So this particular singer के साथ लता जी को परफॉर्म करना था. एंड लता जी बहुत खूबसूरती से बताती हैं कि वो जब उस ज़माने में जब ड्यूएट गाने, आई वाज जस्ट पिक्चरिंग इट द वे शी वाज एक्सप्लेनिंग इट, आई वाज पिक्चरिंग हाउ शी एक्सप्लेन्ड इट. सो उस ज़माने में एक जैसे ये दो माइक दिखा है, राइट? इन आर वीडियो यू आर सीइंग, दो माइक नहीं होते थे. अगर ड्यूएट गाना होता था लड़कियों के बीच, उनको शेयर करना पड़ता था. लाइक यू नो they'd sing on each side of the mic kind of thing, and they would come near the mic and then they would sing. So she had to sing with this particular singer. So she went to this lady, and this singer was a more established singer. So Lata ji says she was of a slightly bigger frame. So, and Lata ji was very peach, right? She was very young and she was very wiry framed. She was very short, not very tall. So लता जी कहती हैं कि उस सिंगर से मैच करने के लिए माइक तो मैच होना चाहिए, हाइट. तो लता जी को एक स्टूल पे खड़ा किया उन्होंने गाना गाने के लिए. तो लता जी तो हमेशा ऐसे खड़े होके, मतलब वेरी शी एक्चुअली सेज इन दैट इंटरव्यू दैट आई टोल्ड यू विद किशोर दा, she actually says how difficult it is for her to move while singing, because if she moves she's afraid that
she won't be able to sing properly. So that is the reason she didn't move. It wasn't that, I should not move because my, I have to be like this, like a very strict this thing. It wasn't because of that. It was because of the fact that she felt very conscious that if she moved, first of all, she didn't know how to dance and move and all that stuff. And if she moved, her song would move also. Her sur would move all over the place. So that was part of the reason why she didn't want to do that. तो इस सिंगर के साथ जब ये गाने आई, एक माइक था, दोनों खड़े थे. लता जी को उन्होंने म्यूजिक डायरेक्टर ने स्टूल पे खड़ा कर दिया था. ठीक है. सो गुलाम मोहम्मद साहब थे जो म्यूजिक डायरेक्टर थे. तो उन्होंने कहा कि बेटा तुम इस पे खड़े होके गाओ ताकि तुम लोगों का मतलब एंड व्हेन यू टेक टर्न यू कम क्लोजर टू द माइक. तो जो दूसरी सिंगर थी बहुत ही बॉइस्ट्रस थी. तो बॉइस्ट्रस बोले तो शी वॉज वेरी ग्रेगेरियस, वेरी लाइक टोटली जैसे सोचो मेरी जैसी या दीपा जैसी. जब हम लोग गाते हैं हम लोग एक जगह पे खड़े नहीं होते, या मूव करते डांस करते हैं. तो उन्होंने गाते गाते ऐसे मुड़ा और एक ऐसे लाइक शी गॉट इनटू द फ्लो ऑफ द सॉन्ग. तो कहते हैं कि लता जी इतनी डरी हुई और लता जी खुद कहती हैं कि वो स्टूल पे ऐसे खड़ी थी कॉन्शियस होके कि द मोमेंट that person bumped into her, Lata ji fell off the stool, making the whole thing, everybody start laughing. I mean, even though she fell and if they had to stop and they had to do the take again and everything, she says she wouldn't change a thing. She says still no regrets about anything in life. She would still want to go back and do the same thing. And she says that is the most unforgettable incident in her entire life. तो ये कौन है आपको हमें कॉल करके बताना है. स्टूडियो का नंबर है 4089122479. एक बार और स्टूडियो का नंबर नोट कर लीजिएगा 4089122479. एंड हमें कॉल करके बताइए ये कौन है. अगेन 4089122479. Here is the Ghana. You can probably identify the voice, but here you go. न जाने आज क्यों घबरा रही हो, नजर कुछ बहके बहके आ रही हो. जो दिल में है वही बतला रही हो, हमें बातों में यूं बहला रही हो. जो दिल में है छुपाए न बनी जब बात आखिर, छुपाए ना बनी जब बात आखिर. तो अपने दिल को यूं समझा रही हो, तो अपने दिल को यूं समझा रही हो. न जाने आज क्यों जरा देखो तो दिल के आईने में, जरा देखो तो दिल के आईने में. ये मैं हूँ या के तुम शर्मा रही हो, ये मैं हूँ या के तुम शर्मा रही हो. न जाने आज क्यों. पहचानो बदजान 4089122479. ये किसकी आवाज है?
कॉल करिएगा 408-912-2479 पे. अगेन 4089122479. हमने आपसे पूछा कि ये किसकी आवाज़ थी जिनकी जो अभी मैंने बजाई, और इसका कुछ क्लू दे दूंगी तो ईजिली पहचान जाओगे आप कि वो कौन थी. तो मैं फेसबुक नहीं देख पा रही हूँ, रियल टाइम लाइव कमेंट्स नहीं देख पा रही हूँ, तो हाँ आना शर्मा जी, अगर आप देख रही हैं तो कॉल करिएगा ना 4089122479. अदिति शेट्टी, क्या आपको पता चला कि ये सिंगर कौन है? 4089122479. मीनाक्षी जी, आपने बोला था कि आप ज़रूर कॉल करके हमें बताओगे कि अगर किसी ने बताया नहीं तो आप कॉल करके बताओगे कि ये किसका है. ये 1950 का मूवी है बनुजान, गुलाम मोहम्मद साहब के म्यूज़िक डायरेक्शन में लता मंगेशकर जी और ये जो दूसरी सिंगर है उन्होंने गाया था. तो वो दूसरी सिंगर कौन है जिनको खुद लता जी कहती हैं कि ज़िंदगी भर भूल नहीं पाएंगी? 4089122479. हेलो पैम पैम, कौन है जी? हेलो हेलो डार्लिंग. पैम पैम. पैम पैम, अदिति कैसी हो? Oh my God! Finally. Oh, you finally got through. Oh, was that you? I'm so sorry यार, मेरे को ना ये multitasking. No, not today. Not today. Yesterday I kept trying, but I think there was something wrong with the lines yesterday. No. I usually always get through. Yeah, no. It was like so many calls were coming in, so it was blocking our line. So I think it was. और बातें इतनी हो रही. How are you doing? Lot of coffee. I know. I'm much better. I'm very khas, but today a little less khas. Yeah. And continuously जब बात करती हूँ और भी होता है. हाँ, मैं बेरिया की खास होस्ट हूँ, स्पेशली मीडिया महिमा की हो टोटली खास होस्ट हूँ, और खास शो पे तो खासी बनती है. हमारी इतनी खास. हाँ. ओह, वो अभी मेरे लिए हंस लिया. वाह. हाय शेरू, पैम पैम डार्लिंग. तो भी बोल रहा था. I seriously yesterday पैम भी बोला उसने. I'm like oh my God, no, that is not a surprise at all. In fact, one of our bandhu Megha said that one of the first words out of her son's mouth was pam pam. So yeah. Is he saying pam pam? चल रहा है पापा pam. Acha, I think based on I've never heard the song, and I don't have a lot of knowledge over it, but I think based on the description of this person you're talking about, Noorjahan. नहीं. That little. नूरजहां. आपने क्या बोला? Yeah, the little one. Noorjahan बोलते हैं ना, छोटी. हाँ, नहीं. तो No. So the person who was the small wiry one was Lata Mangeshkar ji. हाँ. The other person. So am I right or no? No, it's not Noorjahan. Hey, let me give you a clue, okay? Since you have braved yourself and you've called, I want to tell you, it is so funny. But I know nothing. नहीं, Lata Mangeshkar ji कहती हैं कि this lady was supposed to be a tomboy, okay? She has, to her credit, this lady, if she had actually wanted to make it in the playback industry, I mean, she lost out obviously after Lata, and then you had a whole bunch of influx of singers that came in. But had she not, she gave up Aayega Aane Wala. She didn't sing. She lost Aayega Aane Wala to Lata. It seems she was supposed to sing the Aayega Aane Wala song from Mahal. This lady supposedly was, Lata ji actually describes her as खाती पीती, मतलब खाती पीती सी थी. So लगती थी. And she used to act also. The only tomboy I know was even Asha Parekh was like described as a tomboy, but that's way beyond. खाती पीती tomboy. खाती पीती, yeah, like खाती पीती लगती थी types. Like when she was solid, she was tall, and she was like, and she is Bengali too. Bengali? Yeah, she's Bengali. Was she also an actress? Yes, she was an actress too. She was an actress, and she was like, like the total, like very boisterous actress. And she has sung quite a few songs, in fact. She used to be known as Uma Devi.
Yeah. No, I What is her probably screen name? Don't know who she is. Arey, you won't believe it. So she was I very. don't have a face palm moment. You would. Uma Devi was her actual name, but she had a screen name and she had a dark name. What is that dark name? No, it's not Devika Rani. She's the kind of person. When she bumped into Lata Mangeshkar, she fell off the table. She fell off the stool. Hey, you're not talking about Tuntun now. No, she would have been a child at that time. No, it was Tuntun. What? It was Tuntun. Yeah, listen to the voice. You can make out the voice. See, here you go. Actually, that's true. Yeah. I was like thinking this voice is so thick. What is Alturani saying that she's like pitch perfect? It's not pitch perfect. No, she's actually pitch perfect. She was supposedly, Tuntun, Uma Devi ji was known for, she would like listen to a song and fatak se she would pick up the whole entire, including lyrics and everything, and she would belt out the song. So that was the reason that she was getting a lot of work. Apparently. Oh. And then it was her against Lata Mangeshkar who were contenders for Aayega Aane Wala. So yeah. Stand a chance. No, at that time they wanted that kind of a thick voice. Na, ye ladki ki awaaz bahut patli hai. Yeah, and the time. Yes, and the other thing, they also there was another movie for which Kamini Kaushal and supposedly Lata ji was supposed to sing, and they said no, her voice won't suit Kamini Kaushal, so we need to give. So Lata Mangeshkar has lost quite a few songs. She says if it were not for her guru, or the man who gave her the break in the film industry, right? Yesterday we were talking about Ghulam Haider Saab. If it were not for him, she says that she wouldn't have been where she is today, or she would have been. But in any case, this was this actually in her interview after her 92nd birthday, which was just I think 92nd, yeah, that was September 28th, like last year. After her birthday, they said, one incident if you can recall, which is the most unforgettable moment in your life. And then even in her 81st birthday, she in that interview also she said, they said, what is the most unforgettable incident? She says, this is something that will live with me forever. And she says, I cannot imagine how I fell off that stool. So to show, like, she's such a prolific singer with so many experiences, and yet she remembers the most simple, funny incident. Yeah, and she says, to think about it, literally knocked her off her feet. So Literally. And that was what kind of like was, I thought that would be the highlight of her team player pun, because she says even today, at that time during that interview, she said she doesn't have they talked about, do you have any regrets and all? She said, no, I don't have a single regret about anything. I would go back and live everything all over again. And including that fall when Ma Devi ji bumped into me, and she doesn't say moti thi ya kuch bhi, she says khati piti, and she tried to very uncomfortably say khati piti. But back then maybe Tuntun was not as fat as she later became in movies, right? Yeah, no, but Tuntun was supposed to be tall and hefty, right? So it wasn't like, and she said politically correct. Yeah. And she said main aisi sukhri si, but that she's talking about herself being very literally like blown away kind of thing. So it was a very I started laughing when I heard that incident. I totally visualized Tuntun knocking her down. So I could tell with the way you described it pretty well. Yeah. So we all started visualizing. Yeah. And she's very petite too. Yeah. So she must have been very. Yeah, she was very intimidated by that presence. Yeah, and for me it was funny to think that they would make her stand on a stool and sing. So it was really, really interesting. So anyway, I'm going to leave you guys with that wonderful imagery of Lata Mangeshkar and Tuntun singing together. And I'm going to say that wait for another wonderful show tomorrow, another Shraddhanjali. Did you enjoy the show today? Yeah, it was a great show. Yesterday's show was very good. Hey! I was very impressed with how tame both Deepa and Altu Baba was. I was like, oh, get them off. Yeah. So today both of them are not the Suru, no Sugura.
How Anna, is tomorrow you take off and you make both of them do the show. No. Maybe. No, we want you. We want you, Faltu. Who will tell you all this Tuntunala kissa and all? Yeah, come on. Seriously. I know, right? Yeah. So, but thank you so much. Tomorrow will be like another. We've got another theme tomorrow. So, sunte rahiyega, maza aayega. ठीक है? Thank you so much for calling in. Have a beautiful, fantastic evening. Bye. तो बंधुजन, ये था हमारा खास शो आज. एक और डेडिकेशन इन द सीरीज ऑफ श्रद्धांजलि सीरीज टू भारत रत्न लता मंगेशकर जी, जिनका देहांत बस अभी हाल ही में रविवार को हुआ इन इंडिया. वी लॉस्ट हर टू this most dreaded disease, which was the COVID-19, at the ripe age of 92. She will continue to live on, and I really think that, she will be somebody who will influence. But, let me tell you, Banjan, apparently, Lata ji said in one of the interviews, she said, when people asked her, you will live on forever, and that was her last interview. Actually, unka jo last interview unhone diya tha before she I don't think she did any interviews after that before she passed away. And in that particular interview, she said that she doesn't believe that she will continue to live on, because she said this current generation that's there, it's all about instant gratification. Gana aata hai, it's there for, they don't have that it comes, it's 10 minutes is maximum shelf life, and then it's gone from the memory. She says it's not, she tells the interviewer, she says they're not like of your generation where there was a lot of value attached to substantive talent, or in terms of writing, in terms of lyrics, and even in terms of composition. And she says she doesn't believe that her songs will live on forever. I beg to differ. Maybe it's up to all of us as to how we will keep the songs and the legacy going. And I think also, if we have to talk about how the current generation of singers, like, whether it is the Monali Thakurs, the Jonita Gandhis, the Sunidhi Chauhan, Shreya Ghoshal, and, Shreya Ghoshal, Sunidhi Chauhan are still now, they're kind of, it's past their time, sort of. And then you have these newer singers who are doing their own interpretations of Lataji's and Mohammed Rafi's and all these people's songs. So I think it will carry on, possibly in a different, more, the way people interpret it, maybe in some kind of a jazz fashion, in some kind of a funk fashion. And I do think that history repeats itself. So it will come back. People will enjoy more of this music, because I don't think music as itself will go anywhere. And I think that these people, these legends, will live on for as long as music lives on. This is just my 2 cents. Lekin, I just want to again say, Lata ji, loved you. And Bandhujan, अगर आपने लव यू वैलेंटाइन बे एरिया के लिए अभी तक अपना टिकट नहीं खरीदा है, please make sure that you buy your tickets, because this is an amazing Valentine event. It's an outdoor dance party that's happening right here. And it is a party where we bring together the neuro-minority and the neuro-majority communities, jahan pe everybody feels welcome, accepted, and where everybody belongs. So please book your tickets by going to pragnya.org. Again, pragnya.org, and show everybody in the world that you love them. So time for every one of us to say, loved you. Isi ke saath, good night. And I'm going to leave you with the song, नहीं तो मुझे दीपा मार डालेगी कि मैंने ये गाना नहीं लगाया. तो the other female singer with whom Lata ji has the maximum number of female duets, whom she also was, I'm pretty sure as an older sister, was very proud of, with Asha Bhosle ji. This beautiful song from the movie Utsav is what I'm going to play for you. And इसी के साथ हम आपको छोड़े जाएंगे. ये कहते हुए, we'll be back tomorrow morning with Good Morning Bay. Good night, Shabba Khair, and प्यार भरा mwah. मन क्यों बहका
आधी रात को बेला महका हो, बेला महका रे महका आधी रात को, हो मन क्यों बहका रे बहका आधी रात को, बेला महका रे महका आधी रात को, किसने बंसी बजाई आधी रात को, हो किसने बंसी बजाई आधी रात को, जिसने पलकें हो, जिसने पलकें चुराई आधी रात को, हो मन क्यों बहका रे बहका आधी रात को, बेला महका रे महका आधी रात को. We hope you're loving the best music with the best entertainment. You know where it keeps getting hotter, and that's Radio D Hotties. And हाँ मैं आपकी फालतू रानी सुनते रहिएगा. There's more lovely music that we've lined up for you. Total D Hotties.